Hello everyone, myself Utkarsh. Today I'm gonna teach you dynamic programming and how to identify a DP problem, है ना? Or how to approach it. Okay. Okay, so let's see from the basics. So what is dynamic programming? In short, this is also known as DP, है ना? So what is DP? DP is nothing but a recursion is smarter way. Okay, we are gonna see it later. Let's first go through some statements. Okay, solving big problems by breaking them into smaller ones and reusing the result of those smaller problems instead of solving them again for later use if needed. In other words, let's say we are given a problem X, then what we do, we break down into Y and Z, and हमने इसको सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर लिया, देन हमने Y को भी ब्रेक कर लिया, तो ये A और C में ब्रेक हो गया, एंड देन ये भी ब्रेक हो गया किसमें, A एंड B में। So, मैंने देखा यार कि मैं ए वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता हूँ, तो इसका कुछ भी एक्स वाई जेड रिजल्ट आएगा तो मैंने उसको स्टोर कर लिया। किसमें स्टोर कर लिया? वी स्टोर द रिजल्ट इन एन एरे और मैप, हैश मैप। ओके, ऑन ऑर्डर और ऑर्डर वट एवर सूट्स, है ना? तो हम क्या करेंगे, इसके रिजल्ट को स्टोर कर लेंगे, लेट्स से दैट इज एक्स। देन मैंने इधर देखा कि ये वाली मेरी सब प्रॉब्लम फिर से रिपीट हो रही है, तो मैं इसको यहाँ पे फिर से सॉल्व करने की बजाय मैं क्या करूंगा, इसी अपने पुराने वाले रिजल्ट को यूज कर लूंगा, है ना? इससे क्या होगा, एग्जीक्यूशन टाइम मेरा कम हो जाएगा, प्रोग्रामिंग कोड का एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाएगा, है ना? एंड देन व्हेन वी नीड अ वैल्यू वी जस्ट लुक इट अप, है ना? कि अगर मैंने उसको प्रीवियसली सॉल्व कर रखा है उस सब प्रॉब्लम्स को, तो मैं उसका रिजल्ट रीयूज कर लूंगा, है ना? बार बार उसको सॉल्व करने की जगह। सही है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई डीपी प्रॉब्लम? सो इन अ डीपी प्रॉब्लम it is given as something as overlapping sub problems like this a and a is a repeating sub problem, है ना? So we have to count number of ways, maximum and minimum out of all ways, choice, pick or not pick, है ना? So we are gonna see it later. Let's move with the example first. Okay, so the basic example is a Fibonacci series. Fibonacci series. So what is it? 0, 1, 2. Sorry. What we have to do, we have to add the previous two terms to get the new one. Okay, so we add 0 and 1, we get 1. We then add 1 and 1, then we get 2. Then 1 and 2, we get 3. Then adding 2 and 3, we got 5. And similarly adding them. Okay, then so on. Okay, so this is Fibonacci of 0. This is Fibonacci of 1. This is Fibonacci of 2. And so on. Okay, so I can see that for getting Fibonacci of 2, I need to add Fibonacci of 1 and Fibonacci of 0. Now Fibonacci of 2 equal to Fibonacci of 1 plus Fibonacci of 0. Now for Fibonacci of 3, this one, I need to add Fibonacci of 2 and Fibonacci of 1. Fibonacci of 2 and Fibonacci of 1. And for general case, Fibonacci of n equal to Fibonacci of n minus 1 plus Fibonacci of n minus 2. Okay, so अगर मैं इसका रिकर्शन रिलेशन बनाना चाहूँ, एक कोड लिखूँ उसका रिकर्शन का, तो कैसा होगा कि रिकर्शन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले बेस केस लिखते हैं। बेस केस क्या होगा, इफ n इक्वल टू 0, तो व्हाट वी आर गोना रिटर्न 0, है ना? रिटर्न 0। इफ n इक्वल टू 1, what we are going to return, we are going to return 1. And then for any general case, what we are going to return Fibonacci of n minus 1,
plus Fibonacci of n minus 2. Okay, let's see with the example. If I told you to find Fibonacci of 6, so Fibonacci of 6 will be break down into Fibonacci of 5 and Fibonacci of 4. Then Fibonacci of 5 will break down into Fibonacci of 4 and Fibonacci of 3. Then this again will gonna break down into Fibonacci of 3 and Fibonacci of 2. Then this gonna also break down into Fibonacci of 2 and Fibonacci of 1. ओके, तो ये वाला किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा फिर से Fibonacci of 1 और Fibonacci of 0 में। तो इस केस में मेरा n 0 हो गया, तो मेरे को बेस केस है मेरा, तो इस केस में ये मेरे को रिटर्न 1 कर देगा और मेरे को रिटर्न 0 कर देगा, है ना। तो और बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न Fibonacci of n minus 1 plus Fibonacci of n minus 2, तो इन दोनों को ऐड करके मैं ऊपर रिजल्ट में भेज दूंगा, है ना। Fibonacci 1 plus 0 1। देन मैं यहाँ पे देखा कि जो मेरा बेस केस है वो यहाँ पे भी है, तो भी क्या रिटर्न कर देगा 1। अब ये देखो कि जो मेरी ये वाली सब प्रॉब्लम थी Fibonacci ऑफ 2 वाली, वो यहाँ पे भी है, रिपीटेड है ना। और ये वाली भी सब प्रॉब्लम मेरी रिपीटेड है ना। और ये वाली सब प्रॉब्लम भी मेरी रिपीटेड है। तो क्या मैं इनको बार बार सॉल्व करूं? जब मैंने इनको एक बार सॉल्व कर लिया तो मैं इनके रिजल्ट को स्टोर भी तो कर सकता हूँ, ताकि मेरे को बाद में इसके लिए फिर से कोड एग्जीक्यूट ना करना पड़े, है ना। बाद में रिकर्शन कॉलिंग फिर से ना हो, मेरा एग्जीक्यूशन टाइम कम हो प्रोग्राम का, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज करेंगे, ऑप्टिमाइज एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम, ऑप्टिमाइजिंग एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम। मैंने देखा ये वाली जो हमारी मेरी वाली सब प्रॉब्लम है वो फिर से रिपीटेड है ना। Fibonacci ऑफ 3 मेरा क्या रिटर्न करेगा, 2। तो मैंने देखा जो मेरी Fibonacci ऑफ 3 वाली सब प्रॉब्लम मेरी रिपीटेड है यहाँ पे भी। तो मैंने क्या कहा, मैं इसका रिजल्ट स्टोर कर लिया, इसका रिजल्ट क्या था 2। तो मैंने इतना कुछ भी रिजल्ट लिख लिया, Fibonacci ऑफ 3 अगर मेरे को बाद में यूज होगी तो मैं इसको यूज करूंगा, है ना। फिर मैंने देखा Fibonacci ऑफ 2 ये भी मेरा रिपीटेड है, जिसको मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है। तो Fibonacci ऑफ 2 का रिजल्ट भी मेरे पास पहले से है, तो मेरे को इसको फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने देखा यहाँ से भी मेरे को 1 डायरेक्टली मिल जाएगा। फिर मैंने देखा Fibonacci ऑफ 4, तो नीचे से 2 और यहाँ से 1, तो ओवरऑल क्या चले जाएगा 3। फिर मैंने यहाँ पे देखा जो मेरी Fibonacci ऑफ 3 वाली सब प्रॉब्लम उसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, तो मेरे को उसको फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसका रिजल्ट मेरे पास है ऑलरेडी। और Fibonacci ऑफ 4 का भी रिजल्ट मेरे पास आ चुका है, जो क्या है 3 है। फिर मैंने क्या करा, इसको रिटर्न कर दिया 2 यहाँ से, तो ओवरऑल क्या रिटर्न हो जाएगा 5। ओके, देन मैंने यहाँ पे देखा Fibonacci ऑफ 4 की मेरे को नीड है, और फिर मैंने उसको पहले सॉल्व कर लिया है, मैंने उसका रिजल्ट फिर से यूज कर लिया। Fibonacci ऑफ 4 कितना था 3, Fibonacci ऑफ 6 कितना आ गया ओवरऑल 8। तो देखा कि हम यहाँ पे अगर मैं इसको रिजल्ट को अपने स्टोर नहीं करता तो मेरे को क्या करना पड़ता, फिर से रिकर्शन कॉलिंग लगती, फिर से ब्रेकडाउन होता सब प्रॉब्लम्स में। पर मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, इसलिए मैंने इसका रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर लिया, है ना। यहाँ पे भी देख सकते हो Fibonacci ऑफ 6 कितना है 8। ओके, सो देखते हैं हम इसके रिजल्ट को कैसे स्टोर करेंगे, है ना। इसको हम स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी करेंगे, मेमोराइजेशन भी करेंगे, टॉप टॉप बॉटम डीपी, बॉटम अप डीपी सब देखेंगे। ओके, तो उससे पहले देख लेते हैं कि हम इन सब रिजल्ट को स्टोर कैसे करेंगे। कि अगर मैं देखूं कि मेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरी एन की वैल्यू कितनी हो सकती है इस केस में, और मिनिमम से मिनिमम, मैंने देखा जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है वो तो मेरी हो सकती है 6, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0। अगर मैं एक एरे बना लूं 7 साइज की क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग होगी ना, जीरो बेस इंडेक्सिंग होगी, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैंने अपने 7 साइज के एरे बना ली,
अब मैंने देखा जो मेरी 3 वाली सब प्रॉब्लम है, मैंने इसका रिजल्ट निकाल लिया, तो मैं इसको इसमें डायरेक्टली लिख दूंगा। फिबोनाची ऑफ 2 का भी निकाल ले तो मैं भी इसमें डायरेक्टली लिख दूंगा, फिबोनाची ऑफ 4 का कर ले तो इसमें मैं लिख दूंगा। अब बाद में मेरे को नीड होगी तो मैं इससे चेक कर लूंगा। पर मेरे को ये कैसे पता हुआ कि मैंने इसको सॉल्व करा है नहीं करा है? तो इनिशियली हम क्या करेंगे, इनिशियली हम जो अपनी एरे बनाएंगे, इस एरे को का नाम दे देते हैं हम डीपी। ठीक है, जो मेरी डीपी एरे होगी इनिशियली 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 4 5 6। ओके, तो इनिशियली जो मैंने कोई भी सब प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं करी है, तो मेरी इनिशियली सबकी वैल्यू कितनी होगी, -1। -1 क्या दिखा रहा है, नॉट सॉल्व। ओके, सो फिबोनाची ऑफ 6 आया जब मेरे पास, तो मैंने क्या करा, इसको ब्रेक डाउन कर लिया फिबोनाची ऑफ 5 में, फिबोनाची ऑफ 4 में, देन फिर से ब्रेक डाउन कर लिया फिबोनाची ऑफ 3 में, इसको ब्रेक डाउन कर लिया फिबोनाची ऑफ 2 में, 4 में सॉरी। ओके, देन इसको ब्रेक डाउन कर लिया फिबोनाची ऑफ 2 में, एंड फिबोनाची ऑफ 1 में, इसको ब्रेक डाउन कर लिया फिबोनाची ऑफ 1 में, एंड फिबोनाची ऑफ 0 में। तो मेरा बेस केस हिट हो जाएगा, तो इस केस में मेरे को वैल्यू 0 मिल जाएगी, और इस केस में वैल्यू 0 मिल जाएगी। ओवरऑल कितनी वैल्यू होगी, 1 + 0 यानी 1। तो मैंने यहाँ पे देखा, मेरे को फिबोनाची ऑफ 2 का रिजल्ट मिल चुका है, तो मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज करके कितनी कर ली, जितना मेरे को रिजल्ट मिला था। ओके, फिबोनाची ऑफ 1 भी मेरा बेस केस हिट कर जाएगा, तो यहाँ पे -1 वैल्यू, तो ओवरऑल कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 1 लेफ्ट से और राइट से 1, तो ओवरऑल कितनी वैल्यू मिल जाएगी फिबोनाची ऑफ 3 की 2। हाँ, तो मैंने इधर भी अपडेट कर दिया, तो मेरे को इसका रिजल्ट मिल चुका है ना। और फिबोनाची ऑफ 4, इसके लिए मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिबोनाची ऑफ 3 में और फिबोनाची ऑफ 2 में। पर मैंने चेक करा अपनी एरे में कि मैंने फिबोनाची ऑफ 2 का रिजल्ट ऑलरेडी निकाल लिया है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से 1 रिटर्न कर सकता हूँ। फिबोनाची ऑफ 3 का मैं चेक करूँ, इसका रिजल्ट मैंने डायरेक्टली निकाल लिया, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 2 + 1 यानी 3। फिबोनाची ऑफ 4 का रिजल्ट भी मेरे को मिल चुका है, वो कितना है, 3। देख रहे हो कैसे मैं अपनी डीपीआर को अपडेट कर रहा हूँ ना, तो 2 + 3 यानी 5। ओवरऑल फिबोनाची ऑफ 5 का रिजल्ट भी मेरे को मिल चुका है, जो कितना है, 5 है। ओके, देन मैंने यहाँ पे देखा लेफ्ट राइट साइड में कि फिबोनाची 4 की मेरे को नीड है, पर मैंने इसका रिजल्ट ऑलरेडी निकाल लिया, जो कितना है, 3 है। तो देन मैंने 5 + 3 ओवरऑल यहाँ से 3 रिटर्न करा, ओवरऑल मेरा आंसर 8 आ गया। जाने से पहले मैंने इसको भी अपडेट कर लिया। ओके, तो क्या करना है, बिफोर रिटर्निंग आंसर वी आर गोइंग टू स्टोर इट फॉर लेटर यूज, है ना। अगर मैं अपना अब रिकर्शन लिखूं फिर से, पहले मेरा रिकर्शन कोड कुछ ऐसा दिख रहा था, कहाँ गया ये। अगर मैं इसको अपडेट करूं, है ना, इसको मैं थोड़ा ऑप्टिमाइज करूं डीपी के साथ, तो मेरे को कैसा दिखेगा वो। देखो बेस केस तो सेम ही रहेगा, है ना, क्योंकि मैंने वहां पे तो कुछ चेंज करा नहीं। इफ n = 0, तो रिटर्न क्या रिटर्न कर दूंगा, 0। इफ अगर मेरा n =1, मैं उस केस में रिटर्न कर दूंगा 1। ओके, फिर मान लो कोई ऐसा नंबर आया n जिसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, तो मैं क्या उसको फिर से सॉल्व करूंगा, नहीं, नहीं करूंगा ना। इफ डीपी ऑफ n नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या है, अगर नॉट इक्वल टू -1 है, तो मैं इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, तो मैं डायरेक्टली इसके रिजल्ट को रिटर्न कर सकता हूँ, रिटर्न डीपी ऑफ आई, है ना। देन मैं क्या करूंगा, नहीं नेक्स्ट कॉल करूंगा, वरना मेरे को जनरल केस में क्या रिटर्न करना है, रिटर्न डीपी ऑफ n-1 प्लस डीपी ऑफ, सॉरी यहाँ पे n आएगा, डीपी ऑफ n-2। ओके, और जाने से पहले मैं क्या कर लूंगा, इसको
यहाँ पे नो डीपी नहीं आएगा, यहाँ पे एफ आएगा। ओके, फिबोनाची। और जाने से पहले मैं अपनी रिजल्ट एरे में, डीपी एरे में अपडेट कर लूंगा। ओके, तो डीपी ऑफ एन इक्वल टू डीपी ऑफ एन माइनस वन बाय डीपी ऑफ एन माइनस टू। तो मेरा स्मार्ट रिकर्शन कुछ ऐसे दिखेगा डीपी वाला। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स को स्मॉलर सब प्रॉब्लम से ब्रेक कर रहे हैं। उन स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उनका रिजल्ट हम स्टोर कर रहे हैं, अगर बाद में नीड है तो हम उनको फिर से रीयूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कोड कुछ ऐसा दिखेगा इसका, स्मार्ट रिकर्शन का फिबोनाची के साथ। ठीक है, इसी के ऊपर एक बेस प्रॉब्लम है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स। लीड कोड पर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लाइंबिंग स्टेयर्स सेम ऐसे ही कुछ फंडा लगेगा, चेक करना आप एक बार, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। प्रॉब्लम नंबर मेरे को याद नहीं है, तो देखते हैं आगे। अगर मैं इसमें देखूं, मैं टॉप प्रॉब्लम्स के लिए मैं बॉटम तक जा रहा था, देन मैं रिजल्ट अपना आंसर ऊपर भेज रहा था, है ना। इसको बोलते हैं टॉप बॉटम डीपी। टॉप बॉटम डीपी। अगर और जो हमने इस आंसर को स्टोर करा है, इस आंसर को स्टोरिंग करने का प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, मेमोराइजेशन। कि हम मेमोराइज कर रहे हैं चीजों को जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, इसको बोलते हैं मेमोराइजेशन। ओके, और इस वाले डीपी के पैटर्न को क्या बोलते हैं हम, टॉप बॉटम डीपी, है ना। क्योंकि हम टॉप प्रॉब्लम जो हमारी बिगर प्रॉब्लम है, हम उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं स्मॉलर में, देन उसको सॉल्व करते करते हम ऊपर आ रहे हैं। ओके, सो अगर मैं इसका बॉटम अप डीपी देखूं, बॉटम अप डीपी, तो वो कैसा होगा, हम बेस केस से स्टार्ट करेंगे, है ना। स्टार्ट फ्रॉम बेस केस। स्टार्ट फ्रॉम बेस केस। बेस केस क्या है, तो मेरे को डीपी ऑफ जीरो पता है, वो कितना होगा, एफ ऑफ जीरो, फिबोनाची ऑफ जीरो कितना होगा, जीरो होगा ना। वही मेरा बेस केस है। और डीपी ऑफ वन कितना होगा, डीपी ऑफ वन कितना होगा बताओ, ये वन होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो वन था, मैंने जो अपनी एरे बनाई थी, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अगर मेरे को टू के लिए चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो जीरो प्लस वन क्या मिल जाएगा, वन। देन अगर मेरे को थ्री के लिए चाहिए तो मैं इन दोनों को ऐड कर लूंगा, ये कितना हो जाएगा, टू। अगर मेरे को इसका रिजल्ट चाहिए फोर के लिए तो मैं क्या करें, इन दोनों को ऐड कर लूंगा। देन मेरे को इसका रिजल्ट चाहिए तो मैं क्या कर लूंगा, दोनों को ऐड कर लूंगा। इसका रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे ओवरऑल एट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका कोड लिखूं, तो डीपी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, डीपी ऑफ वन इक्वल टू वन, ये मेरे बेस केस हो गया। देन फोर आई इक्वल टू कहाँ से, देखो दो तो मैंने ऑलरेडी फॉलो कर लिए ना, मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, और आई इक्वल टू टू से। और कहाँ तक जाना है मेरे को, एन तक, है ना। तो डीपी ऑफ आई कितना हो जाएगा, डीपी ऑफ आई माइनस वन प्लस डीपी ऑफ आई माइनस टू। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम टेबुलेशन। टेबुलेशन, और इसको क्या बोलते हैं हम, बॉटम अप डीपी। हम बॉटम से स्टार्ट करें बेस केस से, और हम ऊपर तक जा रहे हैं, बॉटम अप डीपी। ठीक है, ऐसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ओ ऑफ क्या होगी, एन होगी। क्यों ओ ऑफ एन होगी, अगर मैं जनरल फेबोनाची की बात करूं तो कुछ वो टू की पावर एन होगी, एक्सपोनेंशियल, है ना। क्योंकि देखो, हर प्रॉब्लम दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो रही है ना। अगर मेरे पास एन प्रॉब्लम है तो वो हर एक
अगर n-1 की बात करो तो वो भी दो में डिवाइड होगी, ये भी दो में डिवाइड होगी, तो जनरली क्या हो जाएगा, 2 की पावर n, है ना। अगर मैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो ये कितनी हो जाएगी, O ऑफ n। क्यों? क्योंकि मेरे पास O ऑफ n इज तो स्टेट्स है टोटल, है ना। मैं पिछले दो का रिजल्ट का यूज करके नया रिजल्ट बना रहा हूँ, देन मैं इसके लिए इन दोनों का यूज करके नया रिजल्ट बना रहा हूँ, तो ओवरऑल कितनी बार लूप चला है, n बार। तो मेरी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, देख रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल से लीनियर पे आ गए। जंप देखो, एक्सपोनेंशियल टू लीनियर, एक्सपोनेंशियल टू लीनियर की जंप मार दी हमने सीधा, है ना कमाल की बात। पावर ऑफ एंड ब्यूटी ऑफ डीपी। ओके, अगर अब इसमें देखें तो इसमें देखते हैं कि हमारा रिकर्शन में जनरल में कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, रिकर्शन में ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, एक्सपोनेंशियल टू की पावर n। देन फेबोनाची में जब हमने मेमोराइजेशन कर लिया, मेमोराइजेशन यानी रिकर्शन विद डीपी एरे, है ना, मेमोराइजेशन यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, O ऑफ n हो जाएगी। और यहाँ पे साइड में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लिखेंगे, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, O ऑफ n। O ऑफ n कैसे हो गई, O ऑफ n इसलिए हो गई क्योंकि जब आप रिकर्शन कॉलिंग कर रहे हैं तो जो हमारा स्टैक यूज हो रहा है, मेमोरी स्टैक, ये डेप्थ देखो ना, ये वाली, ये वाली डेप्थ ना, तो इसकी स्पेस तो लगेगी। इसकी स्पेस कितनी है, O ऑफ n, है ना, रिकर्शन स्टैक बोल सकते हैं इस पे, रिकर्शन स्टैक। और इस केस में कितने मेमोराइजेशन के केस में, एक तो O ऑफ n रिकर्शन स्टैक की मेमोरी प्लस O ऑफ n हमारे डीपी एरे। और जब हमने टेबुलेशन कर दिया, टेबुलेशन के केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, O ऑफ n। पर और क्या फायदा हुआ, हमने ये रिकर्शन स्टैक हटा दी ना, क्योंकि रिकर्शन तो हम कर ही नहीं रहे, हम नॉर्मल लूप चला रहे हैं, है ना, दो बेस केस और एक लूप। तो इस केस में कितनी हो जाएगी, O ऑफ n, हमने इसको अवॉइड कर दिया, O ऑफ n वाली को, ठीक है। तो so till now we are using an array to store our result in Fibonacci, right? तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारी स्पेस ऑप्टिमाइज हो जाए, ना हम अभी एरे यूज करते हैं, है ना, अपने प्रीवियस रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। तो हमने देखा क्या, फेबोनाची जो सीटीसी का फॉर्मूला आया था, क्या आया था, फेबोनाची ऑफ n इक्वल टू फेबोनाची ऑफ व्हाट, n-1, फेबोनाची ऑफ n-2, यानी मेरे को करंट रिजल्ट निकालने के लिए मेरे को अपनी ओनली प्रीवियस दो रिजल्ट की रिक्वायर्ड है, और जब मैं ये वाला रिजल्ट निकालूंगा तो मेरे को खाली ये इन दो रिजल्ट की रिक्वायर्ड है। तो क्या मेरे को इस पूरे रिजल्ट की रिक्वायर्ड है जो इसके पीछे है, नहीं, इनकी जरूरत तो नहीं है मुझे। तो एक बार देखते हैं, अगर बेस केस हमको पता है क्या, कि फेबोनाची ऑफ जीरो कितना होता है, जीरो होता है, और फेबोनाची ऑफ वन, वन होता है, ठीक है, बना लेते हैं, जीरो वन, ये हमारे बेस केस हो गए, ठीक है। इसको हम डीपी एरे भी बोल सकते हैं, फेबोनाची एरे भी बोल सकते हैं, कुछ भी अपनी मर्जी से जो में अच्छा लगे, ठीक है। अभी हम टेबुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने क्या सोचा कि मेरे को ये वाला जो रिजल्ट निकालना है, इसके लिए मेरे को इसकी और इसकी जरूरत है। फेबोनाची ऑफ टू कितना होगा, फेबोनाची ऑफ वन प्लस फेबोनाची ऑफ जीरो। तो मेरा फेबोनाची ऑफ टू कितना हो जाएगा, फेबोनाची ऑफ वन जो कि मेरा वन है, फेबोनाची ऑफ जीरो जो कि मेरा जीरो है, तो फेबोनाची ऑफ टू कितना आ गया, वन आ गया, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे स्टोर करा दिया, तो कितना आया, वन। फेबोनाची ऑफ टू मेरे को वन मिल चुका है, ठीक है। तो फिर अगर मैं फेबोनाची ऑफ थ्री निकालूं तो वो क्या हुआ,
प्रीवियस दो, जो कि फिबोनाची ऑफ 2 है, फिबोनाची ऑफ 1 है। तो कितना हो जाएगा फिबोनाची ऑफ 2? 1 प्लस 1 यानी 2। तो क्या मेरे को फिबोनाची ऑफ 0 की जरूरत पड़ी? मेरे को सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस 2 की जरूरत है ना। तो यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची ऑफ 3 देखूँ तो मेरा 2 आ गया। अगर मैं फिर फिबोनाची ऑफ 4 देखूं तो वो कितना आएगा? फिबोनाची ऑफ 3 प्लस फिबोनाची ऑफ 2, यानी ओनली प्रीवियस दो, इन दोनों की जरूरत है मेरे को। ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1 यानी 3 ना। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मेरे को अगला रिजल्ट निकालने के लिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस दो की जरूरत है, मेरे को पूरे की पूरी एरे की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास ओनली वेरिएबल्स होते जो मेरे को प्रीवियस और नेक्स्ट वैल्यू बता देते, तो फिर भी मेरे को स्पेस ऑफ, तो फिर भी मेरे को एरे की जरूरत नहीं थी। तो किससे आगे? एरे से वेरिएबल्स में आ गए। वेरिएबल्स कैसे वाले? जो मेरे को प्रीवियस बता दे और एक करंट वैल्यू बता दे। प्रीवियस मेरी ये वाली वैल्यू हो गई, करंट ये हो गई, और जो मेरे को अभी वैल्यू निकालनी है वो मेरी ये है। ठीक है, तो ये मेरा, अगर मैं इसको प्रीवियस बोल दूं, करंट बोल दूं, तो जो मेरे को अभी वैल्यू निकालनी है वो कितनी हो जाएगी? प्रीवियस प्लस करंट। इजी है ना। तो चलते हैं एक बार, हम देखते हैं हमने अभी तक क्या करा। अभी याद हो, हमने एक डीपी एरे बनाई थी। डीपी बोलो, फिबोनाची बोल लो, आपकी इच्छा है ना। तो बना लेते हैं वेक्टर इन डीपी। आप एरे भी बना सकते हो, वेक्टर कुछ भी बना लो, है ना। डीपी, इसका साइज हमने 5 दे दिया और इनिशियली सबकी वैल्यू 0। ठीक है, फिर हमने क्या करा? बेस केस लिख लिया अपने। बेस केस डीपी ऑफ 0 कितना हो जाएगा? 0। और डीपी ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 1। फिर हमने क्या करा? एक लूप चलाई थी, आई इक्वल टू 2 से लेकर n तक, है ना। तो डीपी ऑफ आई कितना हो गया था? डीपी ऑफ आई माइनस 1 प्लस डीपी ऑफ आई माइनस 2। ठीक है, फिर हो गया हमारा कंप्लीट ये, है ना। तो ये हमारा सूडो कोड था किसका? टेबुलेशन का, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी? हम एक लूप चला रहे हैं सिंपल, ओ ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ओ ऑफ एन, क्योंकि हम एक एरे यूज कर रहे हैं, है ना। इसको हम जनरली के लिए एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। मैंने बोला स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करना है। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैंने क्या बोला? मेरे को दो वेरिएबल्स की नीड है। एक मेरे को तो प्रीवियस चाहिए। अगर मैं इसमें देखूँ तो प्रीवियस कितना है इसमें? ये मेरा प्रीवियस की तरह काम कर रहा है, मेरा करंट की तरह काम कर रहा है ना। मेरे को निकालना क्या है? मेरे को निकालना है फिबोनाची ऑफ एन, है ना। तो इंट प्रीवियस कितना हो जाएगा? बताओ प्रीवियस कितना है? यहाँ पे प्रीवियस कितना है? 0। और इंट करंट कितना है? 1। तो फिबोनाची ऑफ एन का निकालने के लिए मैं कहाँ से कहाँ तक जाऊंगा? आई इक्वल टू 2 से लेकर एन तक जाऊंगा। प्रिंट क्या करूंगा? बताओ। ये देखो, मेरे को ये निकालना है कितना है? फिबोनाची ऑफ 0, 1, 2, 3। फिबोनाची ऑफ 0 तो मेरे को पता ही है, जो ये है प्रीवियस, ये मेरा करंट है ना। फिबोनाची ऑफ 2 क्या होगा? फिबोनाची ऑफ 2, 0 प्लस 1 यानी 1। फिबोनाची ऑफ 3 कितना होगा? फिर मैं क्या करूंगा? मैं इन दोनों को शिफ्ट कर लूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा? देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें। मैं क्या करूंगा? अपना करंट इधर ले आऊंगा, प्रीवियस इधर ले आऊंगा, ताकि मैं इसको निकाल पाऊं। समझ रहे हो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? फिबोनाची ऑफ 3, प्रीवियस प्लस करंट, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 यानी 2। हम प्रीवियस और करंट को आगे शिफ्ट करेंगे ताकि हम नेक्स्ट वैल्यू निकाल पाए। ठीक है, तो एंड नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी? इक्वल टू प्रीवियस प्लस करंट। देन हम क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे, एक टैप वेरिएबल बना लेते हैं, ताकि मैं इसकी वैल्यू स्टोर कर पाऊँ और देन मैं इसको इसके इक्वेट कर पाऊँ। एंड टेम्प इक्वल टू, हम करंट के बराबर कर लेते हैं बेसिकली। हम क्या करें? एक एक आगे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? प्रीवियस इक्वल टू करंट, एंड करंट इक्वल टू व्हाट? नेक्स्ट वैल्यू।
में टेम्प वेरिएबल की भी जरूरत नहीं है, तो इसको भी हम सिंपल हटा सकते हैं, है ना। अब एक बार ड्राई रन करके देखते हैं कैसे चल रहा है काम इसमें। और लास्ट में हम क्या कर सकते हैं बताओ, लास्ट में हमें जो हमारा रिजल्ट स्टोर होगा वो एट लास्ट करंट में स्टोर होगा, सी आउट करंट। ठीक है, एक बार ड्राई रन करके देखते हैं, उससे ज्यादा समझ आएगा। मेरे को निकालना है फिबोनाची ऑफ 5, है ना। मेरा प्रीवियस कितना होगा, 0 होगा, करंट मेरा 1 होगा। 0 1 2 3 4 एंड 5। प्रीवियस मेरा यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, ये मेरे बेस केस हो गए, प्रीवियस और करंट। फिर मैंने देखा मेरे को फिबोनाची ऑफ 2 निकालना है। फिबोनाची ऑफ 2 कैसे निकालूंगा, मेरी नेक्स्ट वैल्यू होगी, है ना। तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ तक, तो ये कैसे निकालूंगा मैं, प्रीवियस प्लस करंट। ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1 यानी 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इसका अपडेट करूंगा, तो ये वाली वैल्यू मेरे को 1 मिल चुकी है। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, करंट को इस नेक्स्ट वैल्यू के बराबर करूंगा, प्रीवियस को करंट के बराबर कर दूंगा। तो प्रीवियस इक्वल टू करंट एंड करंट इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू, जो कि मैं निकाल चुका हूँ। ठीक है, एक बात याद रखना कि पहले हम प्रीवियस को करेंगे फिर देन हम करंट को करेंगे। पहले हम करंट को इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर मैंने करंट को पहले ही नेक्स्ट वैल्यू के बराबर कर दिया तो प्रीवियस तो करंट की वैल्यू तो चेंज हो गई, फिर मैं प्रीवियस को करंट के बराबर कैसे कर सकता हूँ, फिर हो ही नहीं पाएगा, गलत हो जाएगा वो तो, है। तो पहले हमें किसको शिफ्ट करना पड़ेगा, पहले हमें प्रीवियस को शिफ्ट करना पड़ेगा, देन हम करंट को करेंगे। ठीक है, तो इससे मेरे को फिबोनाची ऑफ 2 मिल गया, तो 1 हो गया। ठीक है, देन हम चलते हैं फिबोनाची ऑफ 3 के पास। फिबोनाची ऑफ 3 क्या होगा, तो मेरा प्रीवियस और करंट यहाँ से आगे शिफ्ट हो गए। फिबोनाची ऑफ 3 क्या हो जाएगा, पी प्लस सी यानी प्रीवियस प्लस करंट। ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी 2। ये मेरी नेक्स्ट वैल्यू आ चुकी है, नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, प्रीवियस इक्वल टू करंट एंड देन करंट इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, प्रीवियस इक्वल टू करंट, करंट कितना है अभी 1 है, और करंट इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू करंट 2 हो गया। तो अब मेरा प्रीवियस कितना हो चुका है, ये वैल्यू मेरी आ गई 2, यहाँ पे मेरा करंट आ चुका है, यहाँ पे मेरा प्रीवियस आ चुका है। ठीक है, इजी। देन हम निकालेंगे फिबोनाची ऑफ 4। ये क्या होगा, पी प्लस सी सिंपल, 1 प्लस 2 यानी 3। तो फिबोनाची ऑफ 4 मेरा आ चुका है, इसको मैं नेक्स्ट वैल्यू बोल देता हूँ। देन पी कितना हो जाएगा, पी को हम आगे शिफ्ट कर लेंगे करंट के आगे, करंट के बराबर, तो प्रीवियस मेरा यहाँ से हट के इधर आ जाएगा और करंट मैंने यहाँ से हट के यहाँ आएगा, और यहाँ की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ जो कि मेरी 3 है। तो प्रीवियस मेरा 2 हो जाएगा और करंट मेरा 3 हो जाएगा। ठीक है, देन फिबोनाची ऑफ 5 निकालेंगे, पी प्लस सी। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस, सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3, प्रीवियस प्लस करंट, तो ये 5 आ जाएगा। ओके, तो 7 आ गया, 5 मिनट ये आ चुका है। देन मैं क्या करूंगा, प्रीवियस इक्वल टू करंट, और करंट अभी कितना है बताओ, 3, और करंट इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू यानी 5। यही तो मेरा आंसर है जो मेरे को चाहिए, फिबोनाची ऑफ 5। देन इसके बाद क्या होगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगी क्योंकि मेरे को फिबोनाची 5 तक निकालना है। तो देखा हमने क्या, हम कहाँ से कहाँ तक गए, 2 से लेकर 5 तक गए, है ना। अब मैं इसका एक कोड लिख दूं तो कैसा बनेगा, वो सूडो कोड। इसका हम सूडो कोड देखें अब तो। प्रीवियस इनिशियली कितना होगा बताओ, 0। करंट कितना होगा, 1। ये हमारे बेस केस हो गए। देन हमने लूप कहाँ से कहाँ तक चलाई, हमें किसका फिबोनाची चाहिए, फिबोनाची हमें चाहिए n का, है। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं int n, जो हम यूजर से लेंगे, सी इन n। ठीक है, ये हम यूजर से लेंगे। और i इक्वल टू 2 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, i लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस। ठीक है, देन हम नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे, नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी, प्रीवियस प्लस करंट। देन हम क्या करेंगे, प्रीवियस को करंट के बराबर करेंगे, देन करंट को नेक्स्ट वैल्यू के बराबर करेंगे, करंट इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू। और लास्ट में हमारा रिजल्ट किसके अंदर होगा, प्रीवियस के अंदर, करंट के अंदर, बताओ जल्दी। सी आउट आंसर होगा हमारा करंट के अंदर, और यही हमारा फिबोनाची ऑफ एन होगा। ये हमारा फिबोनाची ऑफ एन है। ठीक है, तो टेबुलेशन में हमने स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर लिया अपना।
स्पेस ऑप्टिमाइजेशन हमने कर लिया है ना। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी बताओ, एक सिंपल लूप चला रहे हैं हम, ओ ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, ओ ऑफ वन। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ दो वेरिएबल तो यूज कर रहे हैं ना, हम कोई अब एरे यूज कर रहे हैं ना कुछ यूज कर रहे हैं, सिर्फ एक दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, प्रीवियस और करंट, एक नेक्स्ट वैल्यू जो हम अंदर क्रिएट कर रहे हैं ना। तो ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन ही है। ठीक है, तो हमने देखा हमने सबसे पहले क्या करा था, मेमोराइजेशन। सबसे पहले तो बेसिक रिकर्शन था एक, बेसिक रिकर्शन। बेसिक रिकर्शन से हम किस पे आए, हम आए मेमोराइजेशन के अंदर। फिर देन मेमोराइजेशन से हम आए टेबुलेशन के अंदर। एंड टेबुलेशन से हम किस में गए, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। और ये टेबुलेशन का ही पार्ट है। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, एक्सपोनेंशियल 2 की पावर n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी इसकी, हम एक एरे यूज, इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी ओ ऑफ एन। स्टैक क्या है, मेमोरी स्टैक, रिकर्सन स्टैक बोल सकते हो। इस केस में कितनी थी, हमने सिर्फ और सिर्फ, हमने हमारी इसमें मेमोराइजेशन के केस में हमारी मैक्सिमम कितनी स्टेट्स हो सकती है, एन, है ना, क्योंकि हम प्रीवियस रिजल्ट को यूज कर रहे हैं। मैं इसको क्रिएट करूंगा तो मेरे को इसकी और इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको क्रिएट करूंगा तो इन दोनों की जरूरत है, इसको क्रिएट करूंगा तो इन दोनों की। तो मैक्सिमम स्टेट्स कितनी हो सकती है मेरी, ऑफ एन, है ना। क्योंकि जो मेरी एक्स्ट्रा कॉलिंग थी उसको मैंने हटा दिया। कैसे हटाया, मैं एक डीपीआरए यूज कर रहा था। ओके, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ओ ऑफ एन रिकर्शन स्टैक, देन ओ ऑफ एन ये मेरी एरे। इस केस में कितनी थी, इस केस में मैंने रिकर्शन स्टैक को हटा दिया था, क्योंकि अब तो मैं रिकर्शन नहीं कर रहा, सिंपल लूप चला रहा हूँ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ ऑफ एन, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन। देन जब मैंने स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी कर लिया, तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ ऑफ वन, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ओ ऑफ एन। ठीक है, तो इतना सारा ऑप्टिमाइजेशन कर लिया हमने। स्पेस को हम ओ ऑफ वन पे लिया और देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी ओ ऑफ एन पे लिया है। ठीक है, तो ओके सो एवरीवन, अब हम आ चुके हैं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की तरफ ना। तो सबसे पहले हम करेंगे रिकर्शन, देन मेमोराइजेशन, देन टेबुलेशन, देन स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। ओके, और आपको ये सारे के सारे कोड चाहिए तो आपको ये सारे के सारे कोड मेरे गिटहब रेपोजिटरी में मिल जाएंगे। ओके, तो अभी के लिए मैंने क्या करा है, मैंने एक सिंपल सा रिकर्सिव फंक्शन बना लिया फिबोनाची का। बेस केस लिख लिया है, और ये अपना रिकर्सिव फंक्शन लिख लिया है। देन मैं क्या कर रहा हूँ कि वेरिएबल बनाया एन, और इस वेरिएबल की वैल्यू हम यूजर से ले रहे हैं। देन हम क्या कर रहे हैं, इसकी फिबोनाची ऑफ एन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक बार रन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीरीज भी लिख ली है कुछ वैल्यूज के लिए, फिबोनाची ऑफ 0, फिबोनाची ऑफ 1, तो फिबोनाची ऑफ 5। तो यहाँ पे कोई इशू है, फिबोनाची ऑफ n, ओके, बिट्स एसटीडी यहाँ पे नीचे आएगा। ओके, तो अब हम ये इनपुट देना है, इनपुट के लिए वैल्यू हम 5 दे देते हैं, तो इसका रिजल्ट आ चुका है 5, फिबोनाची ऑफ 5 आ चुका है। ठीक है, अब हम इसको फिर से रन करते हैं, 10 के लिए कर लेते हैं, फिर 55 भी आ चुका है। ओके, आप चेक कर सकते हैं इसकी वैल्यू। देन अब इसका मेमोराइजेशन करेंगे। मेमोराइजेशन के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक डीपी एरे बनाते हैं, वेक्टर इन डीपी, आप इसका सेव भी लिख सकते हैं। देन इसकी n+1 साइज की -1। क्यों -1, इसलिए -1 क्योंकि अभी अभी हमने इन वैल्यूज को निकाला नहीं है। ओके, देन हम क्या करेंगे, डीपी एरे को पास कर देंगे फिबोनाची फंक्शन को, फिबोनाची फंक्शन को पास कर देंगे, और इसमें भी इनपुट ले लेंगे। तो यहाँ पे एक बेस केस और लिख लें, कौन सा वाला बेस केस, अगर हमने वैल्यू पहले ही निकाल ली है, इफ dp ऑफ n नॉट इक्वल टू -1, यानी इसको हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो उस केस में क्या कर देंगे, रिटर्न dp ऑफ n। ओके, और यहाँ पे भी रिटर्न करने से पहले वैल्यू अपडेट कर देना नेक्स्ट रिजल्ट के लिए, अगर बाद में नीड होगी तो मैं यूज कर लूंगा। और यहाँ पे डीपी एरे पास कर देंगे, यहाँ पे भी डीपी एरे पास कर देंगे। ओके, अब रन कर लेते हैं। यहाँ पे 10 के लिए कर लेते हैं, तो 55 आ चुका है। तो अब हम चलते हैं टेबुलेशन पार्ट की तरफ। टेबुलेशन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप अपना बेस केस रखते थे, है ना, डीपी एरे इस फंक्शन के दिए नहीं अब हमें। तो डीपी ऑफ 0 कितना था, 0, एंड देन डीपी ऑफ 1 कितना था, 1। फिर हम यूजर से इनपुट लेते थे, सी इन एन, और यहाँ पे इसकी जगह हम एक लूप यूज करेंगे, 0,
तो लूप कहाँ से चलेगी, इंट आई इक्वल टू 2 से लेकर लेस देन एन और आई प्लस प्लस लेस देन इक्वल टू या दो। ओके, तो डीपी ऑफ एन कितना हो जाएगा, डीपी ऑफ आई कितना हो जाएगा, डीपी ऑफ आई माइनस वन प्लस डीपी ऑफ आई माइनस टू। ओके, देन एट लास्ट हमें प्रिंट करना है, क्या करना है, डीपी ऑफ एन, है ना, इस सेमीकोलन लगा लेते हैं। अब इसकी हमें नीड नहीं है। ओके, अब रन कर लेते हैं। इनपुट दे देते हैं 4, आउटपुट आ चुका है 3, इनपुट दे देते हैं 10, आउटपुट आ चुका है 55। ओके, अब हमने टेबुलेशन भी कर लिया। अब हम चलते हैं स्पेस ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में क्या करते हैं, हमें डीपी एरे की नीड नहीं है, हमें सिर्फ दो वेरिएबल चाहिए। एक तो हमें जो करंट वैल्यू बता दे, वो करंट इनिशियली 1 होता है और प्रीवियस कितना होता है, 0। ओके, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, प्रीवियस प्लस करंट। हम क्या करते हैं यहाँ पे, प्रीवियस इक्वल टू करंट, करंट इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू। ओके, देन हम आउटपुट पे क्या प्रिंट करेंगे, किसके अंदर रिजल्ट स्टोर होगा, लास्ट में करंट के अंदर। ओके, अब रन कर लेते हैं। तो इनपुट देते हैं 10, रिजल्ट आ गया 55, इनपुट दे देते हैं 6, रिजल्ट आ चुका 8। ओके, 3 5 प्लस 3, तो नेक्स्ट सीक्वेंस होगा वो 80 होगा। ठीक है, सो विद ऑल दिस आई होप आपको ये डीपी समझ आया होगा, बेसिक्स फिबोनाची के साथ, फिबोनाची सीरीज के एग्जांपल के साथ। ओके, तो टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और। Feel bad, babe, you're lying. We were running out of time. Maybe